Greetings, everyone. I welcome you all to this month's episode of monthly podcast series by Vikas Avadra. For this session, we have with us CA Ujjwal Gadvi. He's a chartered accountant by qualification. He holds a master's in business administration. He's a content creator and he's a TEDx as well as Joe Stocks speaker. So, hello, Ujjwal. Hi, Heth. On behalf of Vikasa Vadodara, welcome you to this series. Thank you, Hit. Thank you for having me. And also, my deepest greetings and warm greetings to everybody who's watching this podcast. Absolutely, sir. So, starting off, being a content creator, can you introduce our viewers who are mostly students at this point to the emerging field of content creation and how has public speaking and interacting with others upscaled your professional career? So, I'll just tell you about how I went about this. I finished my CA back in 2016. Then I finished my MBA after 2019. Then I went for a job in Bangalore and I had to leave that job because of COVID and I came back to Mumbai back in 2020. So now I was one of those few people who was actually looking out for jobs in COVID. I left my job and I was looking for a job where people were holding on to their jobs. मैंने job छोड़ दिया था and I was looking out for jobs in Bombay. So in those 4 months, now this is the time when Instagram Reels had just been introduced. All right, वो just introduced हुआ था. And उस time पे 4 months I was on downtime. I practically had nothing to do. So I always had been a public speaker and I wanted to get into this Instagram thing and figure out because I was seeing two, three specific people who were creating reels and it just shortened to around 20, 30,000 followers in no time. So I was like, इसमें कुछ तो होगा. Let's try to give it a go and let's see. So अभी COVID was या तो खराब चीज थी या फिर ब्लेसिंग थी अभी ये देखने वाले के ऊपर है बट फॉर मी इट वर्कड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज फिजिकल टॉक्स तो ऐसे होते नहीं थे इट वाज इम्पेरेटिव दैट हम ऐसे कैमरा को ही देख के हमारे हम बात करें जो भी है सो बिकॉज ऑफ दैट आई मेड वन रील पर डे कंसिस्टेंटली फॉर अराउंड 3 months वन रील पर डे एटलीस्ट वन रील फॉर 3 months मतलब 90 वीडियोस हो गए so those 90 videos helped me to reach around 10,000 followers in the first 3 months. ये बात कर रहा हूँ मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 की and fortunately but या फिर by a stroke of luck or whatever you tell it I actually ended up getting the job where I work now because of my reels and because of my Instagram because my current employer he somehow got to know about my reels and all and he had a vacancy and in the job process also in the recruitment process he didn't take an interview or anything he actually gave me an assignment that हमारा ये नया product आ रहा है try to make a reel and try to make a video around it and that will be like the selection process so that's how I got that job also and that's how I ended up getting this assignment also so it all kind of culminated into one thing so as far as content creation goes I know three, four, five specific content creators who are also chartered accountants who have also been invited for CA related conferences and events. And it goes to show that you don't see content creation as a co-curricular or extracurricular activity. Don't look at it that way. You see it rather as an addition to your resume. Like say for example, मैं आपको बताता हूँ, there are two, three freshly qualified chartered accountants who are going out and looking out for jobs. Okay. Now, सबका सीवी सेम है एवरीबडी हैज द सेम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एवरीबडी हैज द सेम क्वालिफिकेशन सबके मार्क्स भी सेम आए हैं बट देर इज वन पर्टिकुलर सीए आउट ऑफ दोस थ्री जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता है या बनाती है एंड ही हैज अ डिसेंट नंबर ऑफ फॉलोअर्स 10-20 के फॉलोअर्स हैं उसके सो नाउ यू टेल मी जो भी रिक्रूटर है वो किसको सिलेक्ट करेगा ही हैज थ्री ऑप्शंस सबके सीवी सेम है बट यू आर समवन जो ऐसे वीडियोस एंड बनाता है जिसका पर्सनल ब्रांड काफी स्ट्रांग है इंस्टाग्राम पे हु डू यू थिंक विल द पर्सन सिलेक्ट द एम्प्लॉयर सिलेक्ट देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट द एम्प्लॉयर इज गोइंग टू सिलेक्ट द पर्सन जिसके एटलीस्ट एक पर्सनल ब्रांड बना हुआ है इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया के ऊपर बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट लोग फ्री हैं इसलिए कर रहे हैं एवरीबडी राइट नाउ इज रिजॉर्टिंग टू दिस बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो then it is like आप कहीं पे भी नहीं हो because almost everybody right now, especially after the COVID lockdown, everybody is there on Instagram or on social media or on any platform. So I'm sure the people who are listening, they know this one guy, Finance with Sharan. I'm sure everybody knows him, right? Now, Finance with Sharan, I won't say he's a good friend of mine, but he's an acquaintance. मैं जानता हूँ मैं 2-3 बार मिला हूँ उनसे. The idea of him starting this particular thing, he also started making content creation just as a side hustle, ठीक है? But his idea was that
एंड मेरा भी यही आइडिया था दैट हम इसको बनाते हैं एंड हम इसको एक ऐसे करेंगे कि हमारे सीवी के बियॉन्ड भी हमको रिकग्निशन मिले। अगर हमको इंटरव्यूअर ऐसा पूछे कि भाई तुम सीवी के बियॉन्ड क्या हो, टेल मी समथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी। सो सडनली इफ दैट पर्सन सेज दैट सर मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, मेरा ऐसा पर्सनल ब्रांड भी बना हुआ है, आई हैव दीज मेनी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑल ऑफ अ सडन सामने वाले के दिमाग में आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ, सी, if you are on Instagram or if you are on YouTube or if you are making content, it also reflects a few things about your character. It also says that you are good in research, you read a lot, you study a lot, and अगर आप फाइनेंस वगैरह का कंटेंट बनाते हो तो आपका ये यू एक्चुअली कम अक्रॉस एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसको बोलते हैं एस, इट्स कॉल्ड SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। लाइक उस टाइप का आप कंटेंट बनाते हो और आपकी फॉलोइंग भी ज्यादा है, सो लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन बैठ जाता है कि हाँ इसको इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है, इसने इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, ये सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करता होगा, ये सब्जेक्ट के बारे में बात करता होगा, या फिर इसने इस सब्जेक्ट के बारे में काफी जानकारी ले ली होगी और फिर वीडियो बनाता होगा। सो this kind of shifts the perspective of the opposite person also. I mean, the main reason why I'm sitting here right now giving this podcast, because you also might have felt कि भाई मेरे पास कुछ वैल्यू है देने के लिए कि स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट होगा। It suddenly shifts the perspective. So that is how you can stand out as a content creator. Now, I'll just give one or two more examples. See, मैं अपने personal life के examples दूंगा because that is something which is natural to me. How I helped, how public speaking and content creation helped me. So there was this one इंसिडेंट, मैं बैंगलोर के जॉब में था एंड मुझे पब्लिक स्पीकिंग में घुसना था, ये बात है 2019 की, बिफोर कोविड, बिफोर एवरीथिंग। नाउ उसमें हुआ क्या था दैट आई वाज जस्ट सिटिंग इन माय ऑफिस स्क्रोलिंग थ्रू फेसबुक, मेरा ब्रेक का थोड़ा टाइम था, एंड आई केम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी कि एक ओपन माइक इवेंट हो रहा है कहीं पे, ओके, पब्लिक स्पीकिंग का। एंड आई वाज लाइक यार इसमें तो पार्ट लेना है, फिर लेट्स टेक इट, लेट्स ट्राई। सो अभी उसके फॉर्म फिलअप में 2-3 दिन का टाइम बाकी था। सो हम लाइक ठीक है 2-3 दिन का टाइम है ना, मैं बाद में करेंगे, चलो चलेगा। अभी 2-3 दिन निकल गए और मेरे दिमाग से निकल गया कि अरे यार इसमें तो करना था पार्टिसिपेट, आई हैड टू फिल दैट फॉर्म, बट अभी डेडलाइन पूरी हो चुकी थी। सो आई वाज लाइक करना तो है कैसे भी करके। सो मैं उसकी वेबसाइट पे गया, मुझे उस वेबसाइट पे एक नंबर मिला, मैं उस नंबर पे फोन कर रहा था, आई वाज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग देम। उन्होंने बोला कि नहीं सॉरी, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, 2-3 दिन का डेडलाइन अभी निकल गया, यू कांट। सो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की दैट प्लीज गिव मी वन चांस, प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी, मुझे ट्राई करने दो, आई रियली वांट टू कम। सो जिस लेडी के साथ मैं बात कर रहा था फोन पे, उनको मेरा परसिस्टेंस बहुत अच्छा लगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दैट आई एम डूइंग अ लॉट, कि भाई मुझे चांस दे दो, चांस दे। तो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए 1 घंटे के लिए, स्पेसिफिक 1 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन किया। उन्होंने बोला 1 घंटा में ओपन कर रहे हैं, वापस से आप रजिस्टर कर लो फटाफट। आई रजिस्टर्ड, आई डिड एवरीथिंग, मैं उस इवेंट में गया, आई गेव अ टॉक इन दैट इवेंट and I ended up winning that event. I was the best speaker of the entire lot. Now, if I did not do that, अगर मैं persist नहीं करता, अगर मैं जिद नहीं करता that प्लीज मुझे चांस दो, अगर मैं constantly उनके साथ फॉलो अप नहीं करता, the answer would have been no. आंसर नो ही होता। बट अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था कहीं से पब्लिक स्पीकिंग का, एंड आई एम लाइक यार ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को करना ही है, लेट्स, आई वांट टू डू इट, देन आई वेंट ऑल इन फॉर इट। एंड सामने वाले को भी मेरा परसिस्टेंस देख के अच्छा लगा कि हाँ इसको जेन्युइनली हमारे इवेंट में आने में इंटरेस्ट है। एंड द लेडी आई वाज टॉकिंग टू, शी वाज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हु वाज ऑर्गेनाइजिंग दैट इवेंट। सो द लेसन आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज दैट if you do public speaking, if you come across in the radar of people, then not only are you showing yourself to the masses, but at the same time you're also building your network with new and important people. अभी मैं अगर फोन नहीं करता, मैं अगर बातचीत नहीं करता, मैं अगर कुछ भी कांटेक्ट नहीं करता, देन मुझे पता ही नहीं चलता और सामने वाले को भी लगता कि ठीक है जाने तो नहीं करना है। बट बिकॉज आई वॉज परसिस्टिंग, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू टेक माई शॉट, उनको भी अच्छा लगा होगा कि चलो मेरे इवेंट में ऐसा कुछ है शायद जो इसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है। एंड देन दैट लेडी, आई एंडेड अप बिकमिंग गुड acquaintances विद हर, उनके साथ फिर और भी हमने अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। बट इट ऑल हैपेंड बिकॉज आई ट्राइड टू टेक एन इनिशिएटिव हियर। सो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग, नो, एक ऐसी इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ सेइंग दैट लोगों को मरने से ज्यादा डर पब्लिक स्पीकिंग से लगता है। पीपल आर मोर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग देन दे आर विद डेथ। सो दैट्स एक्चुअली ट्रू। एंड लोगों को मुझे देख के लगता है कि मैं तो पब्लिक स्पीकिंग आसानी से करता हूँ, इट कम्स वेरी इजीली टू मी, बट टिल डेट एवरी टाइम व्हेन आई स्टेप अप ऑन स्टेज आई एम नर्वस, ऑलवेज, absolutely always I'm nervous whenever I go up on stage, but I deliver a talk even though I'm nervous. That is the most important part. So yeah, I think public speaking and content creation like this, and content creation
is like talking to a camera, but public speaking is talking to an audience. And आई ऑलवेज वॉज द पर्सन जिसको ऑडियंस से बात करना अच्छा लगता था. बट अभी कोविड के टाइम पे कैमरा के साथ ही बात करना ऑप्शन रह गया था, ऑडियंस तो थी नहीं. सो इन कोविड आई वॉज जस्ट 3 months ऑल इन फेसिंग माई कैमरा एंड टॉकिंग नॉन स्टॉप. एंड बिकॉज ऑफ दैट आज तक कैमरा से ही बातें करता आ रहा हूँ मैं. सो यस, दैट्स समथिंग विच आई कैन रिकॉल इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन. Okay, sir. So moving on, we have mentioned that you've also been a TEDx speaker. जी. So how was your experience to address such a huge public through the voice of TEDx? So see, TEDx speaker, I've been a 3 times TEDx speaker, but उसमें भी sadly I was a TEDx speaker during COVID only. But उसमें भी the experience is I won't say it was a difficult experience because the first time I gave a TEDx speech, people feel ऐसा लगता है लोगों को that TEDx speech देना बहुत difficult है, it is too difficult. ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ. And this is the time लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, I have so many followers, so obviously इनको बुला लिया होगा TEDx के लिए, इनके लिए क्या मुश्किल है. But I gave my first TEDx speech, पता है कभी? I gave it in 2020 when I had only 1500 followers on Instagram. 1500 से ही जितने ही थे. That's when I gave my first TEDx talk. So that is also an interesting story. So उसमें I had a good talk, I had a good idea. एंड अभी आई एम फ्रॉम एचआर कॉलेज इन मुंबई, एंड एचआर कॉलेज ही ऑर्गेनाइज कर रहा था इवेंट वहां का. सो एवरी टेडेक्स हैज इट्स ओन डेडिकेटेड टेडेक्स पेज ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है. सो एंड उस पेज के ऊपर उनके ये लोग भी होते हैं, उनके क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो लोग भी उस पेज पे होती है उनकी प्रोफाइल. सो आई जस्ट रीच्ड आउट टू देम. मैंने सिर्फ उनको एक कोल्ड इंस्टाग्राम डीएम किया दैट आई गॉट टू नो अबाउट दिस इवेंट एंड आप ये इवेंट कर रहे हो. एंड मैंने ये भी देखा कि उस इवेंट की थीम क्या होती है. एवरी टेडेक्स इवेंट ऑल्सो हैज इट स्पेसिफिक थीम, कि ये थीम है. कुछ की पेट्रियोटिज्म पे होती है, कुछ की साइकोलॉजी पे होती है, कुछ की ह्यूमन बिहेवियर पे होती है, कुछ की सोशल चेंज, सोशल अवेयरनेस के ऊपर होती है. सो आई फिगर कि हाँ, इन लोग की एक थीम है. सो उस थीम के हिसाब से मेरे पास आइडिया रेडी था. आई केम अप विद द आइडिया, आई केम अप विद कि मेरे पास एक आइडिया है. आई एम ऑल्सो एन अलमनस ऑफ एचआर कॉलेज. I have had so much experience, and I really feel I can add value to your audience and to the college also. So I'm requesting a chance. So that was it. मैंने सिर्फ एक डीएम किया था, and they actually took interest and they also reached out to me कि हाँ ठीक है, let's proceed and let's hear you out. So मुझे स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता था कि यार बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत बहुत इजी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा. बट ऑल इट टुक फॉर मी वाज टू जस्ट रीच आउट एंड टू आस्क कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच पीपल डोंट डू. दे डोंट रीच आउट, दे डोंट आस्क क्वेश्चंस. लोगों के पास टैलेंट होता है, लोगों के पास आइडियाज भी होते हैं, लोगों के पास करने का वो भी होता है. दे ऑल्सो हैव द स्किल टू एक्चुअली डिलीवर व्हाट इज रिक्वायर्ड. बट पीपल डोंट आस्क. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. पीपल डोंट आस्क. एंड मैंने वही किया कि लोग पूछते नहीं है, मैं चलो पूछ के तो देखता हूँ. लेट मी एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना बोल देंगे. वो तो वैसे भी होने ही वाला है अगर आप पूछोगे नहीं. But I simply asked. I followed up once, I followed up twice, but then they actually reverted and they said, "कि हाँ ठीक है sir, we like your idea and let's proceed." And that's how I delivered my first TEDx talk. And the remaining two TEDx talks, they were, वो तो मैंने considerably Instagram पे काफी growth हो गया था उसके बाद I got it. But हाँ, ये भी हो सकता है कि मैंने already एक TEDx talk दे चुका था and that kind of snowballed, वो snowballing effect हुआ, and because of that I landed the other two. एंड इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करने के बाद आई गॉट अ जोश टॉक अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. तो जोश टॉक में तो एक्चुअली स्टूडियो में जाके हमने रिकॉर्ड किया था वो टॉक. बट या द बॉटम लाइन इज यू आस्क, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर देयर एवरीवेयर अराउंड अस. आई मीन अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर डूइंग समथिंग और द अदर, डूइंग सम फेस्ट्स और एवरीथिंग, सम प्रोग्राम और समथिंग ऑल टुगेदर, आप ऑर्गेनाइजर्स से, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से या किसी से भी सिर्फ एक बार पूछोगे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे चांस मिलेगा कि नहीं. दैट आस्किंग, सिर्फ पूछना, दैट itself sets you apart. बिकॉज कोई पूछता नहीं है. nobody asks. लोगों को डर होता है, लोगों को ये झिझक होती है कि पूछेंगे तो यार हमारा क्या होगा. these are the things where you actually have to be shameless. You have to be absolutely shameless and you just have to go and ask. Because वो बोलते हैं ना कि if you don't ask, the answer is always going to be no. So you have to ask. And some ask, अगर आप पूछोगे तो थोड़ी probability होगी कि हाँ या ना होगा. अगर आप नहीं पूछोगे तो आंसर नहीं होगा. So every opportunity I've gotten so far right now is only because I did this one simple thing, which is asking for it. That's it. And same applies for TEDx. See, sometimes if you are not that big enough, people don't know you well enough, then opportunities will not come to you. There is something called as pulling and there is something called as pushing. All right.
So initially, when you are just building, when you are starting, yeah, this applies to everything, public speaking or content creation or starting your business or going for a job or whatever. If you are not big enough, then initially you have to put yourself out there. आपको खुद को push करना पड़ेगा. You have to do something कि लोग आपको देखें. फिर then you have, if you have done something considerably big enough, आपने कुछ बड़ा अगर कर लिया है धीरे 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 करके over the years, then लोग आपको देखेंगे. Then you automatically will become visible when you've done, because initially तो कोई किसी को नहीं देखता यार. Initially if you are small, initially if you're not done something, then आपके देखे जाने के chances बहुत ही कम है. So in that time you actually have to ask, you actually have to go ahead, because कोई आपको देखने वाला नहीं है. इतनी भीड़ में आप कैसे दिखोगे? हाँ, but asking is something not everybody do. अगर 100 लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, 100 लोगों में से शायद सिर्फ 10 लोग एक्चुअली पूछते होंगे. दे मस्ट बी आस्किंग फॉर इट. एंड 10 लोग जो पूछते हैं उसमें से एक को मिलता है. बट इफ यू आर आस्किंग फॉर इट तो ही आपको मिलेगा ना. वो 10 लोग में से भी एक प्रोबेबिलिटी उसकी ही होती है जो परसिस्ट करता है, जो पूछता है. नाउ जैसे कि मैंने वो ओपन माइक का एग्जांपल दिया था. आई आस्क्ड एंड दैट्स व्हाई आई गॉट इट, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग, दैट्स व्हाई आई गॉट इट. सो इनिशियली यू हैव टू बी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखे वहां पे आपको जाके पूछना है, एंड यू हैव टू ग्रैब इट बाय द थ्रोट. दैट्स इट. Okay, sir. So, sir, moving forward, you mentioned that you did your MBA after you completed your CA. So, would it be okay to say that CA groomed your knowledge, but MBA groomed your overall personality? Quite yes, I would say yes, because CA was something where my knowledge grew, and fortunately or unfortunately, I cleared CA when I was just 22 years old, and I wanted to do something beyond that also. 2016, I was 22, and I wanted to move beyond that and also try to do something more or also get some further education. तो MBA मैंने सोचा ही था कि मैं करूंगा, but when it comes to CA, I think most of the things which, at least during my time, I saw students doing wrong was that they focused a lot on just work, 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 work. And most of the time during work, they tend to neglect or avoid their grooming and personal skills. So I know many people who are so much smarter than me, who work so much harder than me, but they were not able to interact properly with people. So when I did my MBA, when I moved ahead and did my MBA, see MBA में क्या है? It's not about the studying. उसमें studying and classwork and homework and exams and वो सब तो है ही. But it's more about the things which you do outside of the classroom. I mean, thankfully, abhi bhi, even in CA, there are so many opportunities which students get beyond the classroom also, organizing fests and organizing events and doing so many extracurricular things and everything. But I'm very sure most of the students don't participate in that. Most or CA वैसे course भी वैसा है. There's so much of studying, there's so much hard work to do that even the student's perspective sometimes is right that time नहीं मिल पाता, हम manage नहीं कर पाते, हम पढ़ना भी होता है, ये भी होता है. So yes, both are necessary, but sometimes finding a balance is right. So during my MBA, most of the things which I did was during the first year, I was the padhaku type. I used to study a lot and all that, but I also used to do things outside of the classroom. And in the second year, the biggest thing which I did was I took part in a lot of competitions which were outstation competition. College में जाके you have to represent your college and you have to participate. Hmm. So that's what I used to do. I went to multiple cities. I did multiple competitions. I also won a few competitions. But this kind of did two, three things for me. First, I traveled a lot, so I saw different colleges. I saw different kinds of students. I interacted with most of them. Second, it put me out of my comfort zone, traveling to different cities. And there are one, two cities where I went even alone. And I participated in competitions all by myself, without any team. So that kind of expanded my horizon ki हाँ क्या क्या हो सकता है. There are things which I saw which I would not have seen if I did not travel. And third, because of this, I attracted more opportunities. So I was traveling across multiple cities. I was taking part in so many competitions. I was doing so many extracurricular activities. And I was also focusing on my studies and doing that. So people in college started to notice me that there is a guy who is doing all of these things and he's doing stuff for college and he's also winning competitions. वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है. So because of that, I became a magnet for further opportunities. Okay. Sometimes क्या है, most of the people they वो होल में जाके बैठ जाते हैं. They don't do much outside of it. वो होल से बाहर नहीं निकलते. They find comfort in that hole and they stick around in that hole and बस वहीं पे रह जाते हैं. But because I got out of it, मैंने सिर्फ एक चीज पकड़ी.
ऑलराइट, आई डिडंट डू मल्टीपल थिंग्स। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज पकड़ी कि मुझे अभी कॉम्पिटिशन्स में जाना है, आउट स्टेशन कॉम्पिटिशन्स, बिकॉज आई लाइक टू ट्रैवल दैट वे। एंड प्रेजेंटेशन में, पब्लिक स्पीकिंग में मैं अच्छा था, तो उसमें कैंपसेस पे जाके प्रेजेंटेशन देना होता था, डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो एज अ सेइंग, ऐसे ही अलग अलग जाके मुझे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना था, प्रेजेंटेशंस देने थे, ये सब करना था, वो सब करना था। सो दैट वाज द थिंग आई वाज गुड एट, प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो वो पकड़ के मैंने देखा कि मैं कॉलेज में क्या कर सकता हूँ। कॉम्पिटिशन्स वाज वन ऑप्शन, कि मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जा सकता हूँ, अलग अलग शहरों में। एंड आई डिड दैट। एंड मैं कॉलेज के लिए अगर जीत के आता हूँ तो कॉलेज इज ऑल्सो हैप्पी कि हाँ, ये ही इज एक्चुअली गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड विनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेज एंड विनिंग थिंग्स। So this one thing I picked up, and then this one thing further escalated to multiple things. Then the college management started to push me for in-house events and in-house competitions, and take, uh, public speaking and hosting the college events and conclaves hote the marketing ke. They used to put me in that. So one thing I did, and that kind of cascaded into different things altogether, and everybody started noticing me. Ki, hi. So if you do things, you also come under the radar of good people and influential people. बिकॉज अगर आप कुछ करोगे नहीं, अगर आप दिखोगे नहीं, देन आप कहीं भी दिखाई नहीं दोगे, यू विल ऑलमोस्ट बी इनविजिबल। सो ऑल ऑफ दीज ऑल टुगेदर इट हैपेंड बिकॉज आई गॉट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं कॉलेज में वही कर सकता था, क्लास में जाता, पढ़ता, एग्जाम देता, अच्छे मार्क्स लाता, जॉब मिल जाती। बट देन आई वुड हैव जस्ट बिकम इनविजिबल। अगर मैं कुछ करता नहीं, अगर मैं इतनी सब चीजों में पार्टिसिपेशन नहीं करता, देन आई वुड हैव जस्ट एंडेड अप बिकमिंग एनी रैंडम स्टूडेंट हु जिसका कोई पर्सनल ब्रांड ही नहीं है, जिसको कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती। बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम सम प्लेस, कहीं से आप शुरू करोगे तो उससे कुछ और मिलेगा, कहीं से आप शुरू करोगे उससे कुछ और मिलेगा। ओके, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल फ्रॉम माय कॉलेज डेज ओनली। ओके, एमबीए कॉलेज की बात है, एंड दिस मैं जो बोलने वाला हूँ वो शायद कोई भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारे सीनियर्स थे, सीनियर्स का फेयरवेल होने वाला था। ओके, एंड उनका फेयरवेल होने वाला था। एक उनके लिए इवेंट था, फेयरवेल इवेंट। वहां पे देयर वाज मी एंड देयर वाज दिस वन अदर गर्ल, एंड वी बोथ वर को होस्टिंग इट। ओके, वन गाय वन गर्ल। सो उसमें एक सीन करना था हमको साथ में, वेर आई हैड टू फ्लर्ट विद दिस पर्सन ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल। नाउ आई वाज गिवन दिस चांस दैट उज्जवल ये एक है एंड ये करना पड़ेगा, टेक इट और लीव इट। सो अभी मेरे लिए दिस वाज अ डू और डाई सिचुएशन। आई वाज लाइक, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। नाउ इफ आई डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, देन जो मैनेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दिल बी लाइक कि उज्जवल तो करेगा नहीं, ही इज नॉट वर्थ इट, हमने इसको अपॉर्चुनिटी दिया था, ये लेता नहीं है। सो दे विल नॉट कंसिडर मी फॉर एनी फ्यूचर इवेंट्स और समथिंग। दैट वाज वन रिस्क। सेकंड रिस्क वाज कि चलो मैंने ले लिया, एंड इफ आई फंबल्ड, इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग ऑन स्टेज उसके साथ, देन पूरे कॉलेज में मेरा मजाक बन जाएगा। दैट वाज अनदर रिस्क। एंड थर्ड रिस्क ये भी थी कि चलो मिला है तो लेना है, एंड आई हैव टू परफॉर्म। फॉर्चुनेटली माई को होस्ट वॉज ऑल्सो वेरी decent that way in preparations. She also helped me out कि ऐसे ऐसे करते हैं। शी ऑल्सो मेड इट इन अ वे दैट ज्यादा कुछ ठीक लगे, कुछ खराब नहीं लगे, कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं लगे, बट लेट्स मेक इट नॉर्मल। इवेंचुअली इट ऑल वेंट वेल, अच्छे से हो भी गया। द ऑडियंस ऑल्सो अप्रिशिएटेड आवर परफॉर्मेंस। एंड साइड बाय साइड, सिंस आई वाज पब्लिक स्पीकिंग, आई वाज इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल। सो ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज मी कि हाँ, इसने अच्छा किया था, ही डिड वेल, ही डिड वेल। सो देन ऑटोमेटिकली आई built a good network with students, number one. Second, I built a good network with the teachers over there. Okay, because teachers also felt कि हाँ, this guy is doing something, he's good at what he does, तो इसको हम फ्यूचर में भी, आने वाले फ्यूचर में भी चांसेस देंगे। ना यहाँ पे अगर मैं मना कर देता लेकिन नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दैट, तो क्या होता? आई वुड हैव नेवर गॉटन अ चांस इन कॉलेज। एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के सामने भी मेरा अच्छा नेटवर्क नहीं बन पाता। दे वुड नॉट हैव रिस्पेक्टेड मी एज मच एज दे डिड आफ्टर आई परफॉर्म द एक्ट। So all of this kind of, it groomed me and it made me a better communicator also, because this one thing, it prepared me for all the future events which came to my way, and which prepared me कि हाँ चलो, मैं अगर अच्छा कर सकता हूँ तो मैं और भी बेहतर कैसे बना सकता हूँ उनको। दे मेड मी इनटू अ बेटर पर्सन। सो यस, एमबीए इन अ वे हैज रियली हेल्प मी टू groom my personality in a much better way. But yes, I would not have been so if I were not a CA before. मैं CA था, I went through the hardships and I went through the struggles of becoming a CA, because I feel that अगर इंसान इंडिया में CA कर सकता है, then वो कुछ भी कर सकता है, he can do anything. Because I know how much I studied during my CA final exams, and if CA कर सकता है तो MBA is a cakewalk. So yes, and even
काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीए करने के बाद एमबीए करते नहीं है. सो मुझे याद है मेरे कॉलेज में सिर्फ मैं एंड वन मोर गाय इन द सेम क्लास. वी वर ओनली टू सीएस, टू क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द एंटायर बैच ऑफ 1,000 स्टूडेंट्स इन द एंटायर कॉलेज. तो हम दो ही सीएस थे. सो लाइक सिंस आई वाज अ सीए द रिस्पेक्ट वाज डिफरेंट. इवन द स्टूडेंट्स दे सॉ अस विद utmost रिस्पेक्ट कि हाँ ये सीए खत्म करके आया है. सो व्हेन यू हैव द टैग सीए इन फ्रंट ऑफ योर नेम, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. लोग तुमको एक अलग ही लेवल के रिस्पेक्ट के साथ और रेवरेंस के साथ देखते हैं. सो यस, दैट ऑल्सो हेल्प मी टू बी on in the good network and in the good books of people. So yes, that is also very important. So I regard both CA and MBA as equally important in different ways. I mean, both are two sides of the same coin. Okay, okay, sir. So, sir, let's take a leap backwards to your student days. जी. What was the main challenge you would say you faced as a CA student? Okay. As a CA student, I think um, finding the balance between coaching classes, my articleship, and the final preparation. I think that was the biggest challenge. But as fortunately, I was working at a good firm, जहाँ पे I had some understanding seniors. Deadlines तो होती हैं, overworking होता ही है. But if you have good people to support you, it works out well. So that was one challenge of finding the right mix. But I was compensated for it कि भाई मेरे seniors अच्छे थे, मेरे colleagues अच्छे थे, they were understanding and work policy भी अच्छा था. I had a good 5 month leave for my first attempt. मुझे 2 attempts लगे थे सीए फाइनल में. Okay. So in my first attempt I had like 5 months leave. उसके बाद I didn't make it. So second attempt के लिए I had further 3 months leave. So I had total 8 months to study for the CA final exam. So yeah, that way it was fine. But yes, that was the biggest challenge. Finding the balance was the toughest. But touch wood, it's हो गया कैसे. Eventually it all makes sense. But yeah, this was the biggest challenge which I faced. Okay, okay, sir. And lastly, what is that one bit of advice that you'd like to give to all the students watching this? Two, three pieces of advice. Number one, uh, पढ़ाई के मामले में whenever you are studying, don't disregard your health Hmm. because I made sure that I had 8 hours of sleep, good lunch, and good dinner whenever I was studying at home for 5, 6, 7, 8 months straight. So don't compromise on your health. Don't compromise on your studying. Second, my MBA में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी. ही सेड दैट आप लोग इस वक्त जिन लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हो उनमें से 90% लोगों को आप पढ़ाई खत्म होने के बाद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखने वाले हो. Yeah. एटलीस्ट 90%. ऑल राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट पीयर प्रेशर में मत पड़ना. उसको इतना आया मुझे क्यों नहीं आया, उसको जॉब मिली मुझे क्यों नहीं मिली, उसको ये पैकेज मिला मुझे क्यों नहीं मिला. डोंट फॉलो इन दैट ट्रैप ऑफ पीयर प्रेशर बिकॉज सिंस 90% लोगों को आप कभी नहीं देखने वाले, उनका मुंह कभी नहीं देखने वाले हो, देन उनको क्या मिल रहा है और आपको क्या नहीं मिल रहा, और आपको क्या मिल रहा है वो उनको क्यों नहीं मिल रहा. डोंट फॉलो इन ऑल दिस. पीयर प्रेशर इज अ मिथ. सो आप अपने आप के साथ कंपेयर करो. Compare yourself with who you were 3 months before, compare yourself with who you were 1 year before, and compare yourself with who you were 5 years before. Okay. That's what matters. Because मैं वही करता हूँ. मुझे जब ऐसा लगता है कि दूसरों को मुझसे ज्यादा मिल रहा है, आई कंपेयर कि उज्जवल आज 2024 चल रहा है, 2023 में तुम कैसे थे, 2020 में तुम कैसे थे, और 2016 में तुम कैसे थे, एंड अभी क्या हो. इफ यू आर प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट मैटर्स. एंड बाकी और कोई मैटर नहीं करता. तुम्हारा प्रोग्रेस होना चाहिए आगे. दैट इज सेकंड. एंड थर्ड is that most of the mistakes which people make is that वो सीए में ही अंदर सब कैटेगरीज के करियर्स को थोड़ा सा वो नहीं करते, थोड़ा सा फाइंड आउट नहीं करते कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. दैट्स आल्सो द मिस्टेक व्हिच आई मेड इनिशियली. मैंने बस सोचा था कि सीए में ये एक ही लाइन ऑफ वर्क हो सकता है. बट इवन एज अ सीए यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स. तुम ऑडिट में जा सकते हो, तुम टैक्स में जा सकते हो, तुम टीचिंग में जा सकते हो, तुम मर्जर्स में जा सकते हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जा सकते हो. यू कैन डू सो मेनी थिंग्स अंडर वन अम्ब्रेला. बट पीपल स्टे रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन थिंग. उनको ऐसा लगता है कि ये एक ही चीज है, इसमें अगर मैं निकलूंगा और कहीं और मेरा होगा नहीं. सो बिफोर टेकिंग एनी रिस्क वो लोग खुद को ही हरा देते हैं. बिफोर प्लेइंग दे डिफीट देयर ओन सेल्व्स. सो डोंट डू दैट. ट्राई टू फाइंड कि यार कौन से करियर पाथ्स हो सकते हैं. लोगों से बात करो, सेमिनार्स अटेंड करो, सीनियर्स से बात करो, मैनेजमेंट से बात करो. ट्राई टू फाइंड के कौन से फील्ड्स हैं जहां पे तुम एज अ सीए कर सकते हो. अच्छा, आई नो समवन जो डेस्क जॉब में बहुत ही बेकार है. इज अ टेरेबल डेस्क जॉब वर्कर. डेस्क जॉब उसको जमता ही नहीं है. बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई नो. टीचिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है. वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स आई मेट इन द फील्ड ऑफ सीए. सो यू कैन ऑल्सो बी अ गुड टीचर. बट देर आर पीपल जिनको डेस्क जॉब अच्छा लगता है.
टीचिंग बात करना अच्छा नहीं लगता. सो ट्राई टू फाइंड कि तुम कौन से मिक्स में बैठते हो एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गुड फॉर यू. एक ही काम को लेकर बैठ मत जाओ. यू कैन सी आज तो भी इतने सारे स्फीयर्स हैं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो समवेयर और द अदर वेर यू आर नीडेड यू विल फाइंड द राइट फिक्स, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा वो. And third, if you find yourself in a job which is not right for you, if you find yourself in a situation which is not right for you, then उसी situation में ज्यादा देर तक चिपक के मत बैठो. Try to find ways of getting out of there. Because I also did that mistake. मैं एक ही जगह पे चिपक के बैठ गया था काफी टाइम तक. Even though I was not liking it, I was not enjoying it. I don't know, for some reason I was stuck. Yes, money might be important. जॉब सिक्योरिटी माइट बी इंपॉर्टेंट. बट अगर आपके लिए पॉसिबल है वहां से निकलना, थोड़ी सी मेहनत करके वहां से निकलना, देन सही टाइम पे गेट आउट ऑफ देयर एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग बेटर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज ट्रू फॉर योर वर्क, दिस इज ट्रू फॉर योर लाइफ. एनीथिंग विच इज नॉट बेनिफिटिंग यू, वहां पे चिपक के मत बैठो. ट्राई टू फाइंड वेज कि आप वहां से निकल के किसी बेटर जगह पे जा सको, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो. एंड I think lastly, one more thing. I would advise all of you people that please try to create some form of content on Instagram. Because Instagram पे आज नहीं तो अगले 5 साल बाद बहुत सारे लोग होंगे ही जो कंटेंट बनाते होंगे. एंड आप शायद 5 साल पीछे आके देखोगे कि यार 5 साल पहले हम बनाना शुरू करते तो हम कहाँ से कहाँ होते. बट डोंट डू दैट. एटलीस्ट इन सम वे और इन सम फॉर्म आपका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए सोशल मीडिया पे. बिकॉज लोग आपका सीवी और आपका रेज्यूमे बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखेंगे कि आपका वहां पे कैसा प्रेजेंस है. सो try to build some form of network there, because see, don't do it for the followers, don't do it for the fame, don't do it for the money, but do it in the with the mindset of building a network. Sometimes ये सोशल मीडिया प्रेजेंस और ये पर्सनल ब्रांड की वजह से आपको ऐसी ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो शायद आपको आपके ट्रेडिशनल जॉब के साथ कभी नहीं मिल पाएंगी. You don't know the power of that. So just for the sake of that and for building a good network, try to create a personal brand on social media or anywhere. And just one last thing, अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आता है, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी जॉब आती है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा आता है जो पोटेंशियली अच्छा है, आपको बेनिफिट करेगा, then go for it. Try for it. Okay? Don't defeat yourself कि यार मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होगा तो, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो, अगर मैं ये मुझसे नहीं हो पाया तो. डोंट हैव दीज थॉट्स, बिकॉज ऑफ दैट तुम खुद को रिजेक्ट कर दो. अगर सामने से कुछ आता है, अगर तुमको पता चलता है, लाइक आई मेड बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ ओपन माइक, लाइक आई मेड द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्लर्टिंग विद समवन ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल. इनिशियली तो वो अनकंफर्टेबल था, इट वॉज अनकंफर्टेबल, बट नाउ लुकिंग बैक while speaking about it right now on this podcast, I feel really blessed कि चलो मैंने चांस लिया, मैंने I made myself uncomfortable and मुझे वो करने का मौका मिला. Because of that I became a better person. So yes, please try to make the most of the opportunities and the people who come to you for anything whatsoever. That's it. Okay, sir. So lastly, we have prepared a Hmm. small rapid fire round for you. Let's move on towards that. So first would be CA in job or CA in practice. CA in job. Okay. One change that content creation has brought about in your personality. Hmm. Made me a better speaker. Okay. What's something that you are passionate about that many people might not know? Spirituality, Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, everything about our Sanatan epics. Okay, sir. What's the best piece of advice that you have ever been given and you'd like to impart that? Hmm. My MBA faculty back in second year, fourth trimester, he said, "You don't get what you want, you don't even get what you deserve, you get what you negotiate." Okay. So, and if you're not in the field of content creation, what else would you be doing right now? Okay, I would be a teacher. Okay. So, and one reason why you chose CA. I chose CA because my parents told me when I was a kid कि CA करेंगे तो लाइफ सेट है. इनिशियली मुझे लगा कि यार दे आर जस्ट ब्लफिंग, बट नाउ आई फील इट ऑल मेक्स सेंस दैट यस डेफिनेटली सीए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ सेट कर दे. Okay. And what is that one legacy you want to leave behind? Okay, one legacy I want to leave behind is whenever people remember of me and when they think of me, they say that yes, because of this person, I believe in God. Okay. And what's the Hmm. one piece of advice from Mahabharata or Ramayana
that you think is Hmm. still relevant and will be relevant for the times to come? Okay, this is a tough question. Hmm. Relevant and still relevant in the time to come. Okay, so I'll just quickly tell a story between Arjun and Duryodhan. Sure. So Duryodhan, he actually goes to Indraprasth, the new kingdom of Pandavas. He falls in water and he treats this incident as an insult. Everybody laughs at Duryodhan. Mm. So this is one of the reasons why the Mahabharata war happens at the end, because Duryodhan falls in water and everybody laughs at him. But Arjun was also in a similar situation where when he went to the heavens to his father Indradev, there was an Apsara Urvashi who cursed Arjun to become a transgender. So now Arjun also was like, ये मुझे क्या हो गया है? ये कैसा श्राप मिल गया? But Arjun did not take this as a blow to himself. He thought to himself that भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है तो शायद मुझे ये श्राप भी दे दिया, so that मुझे मेरी सफलता पे, मेरी कामयाबी पे घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो. एंड उल्टा इंद्रदेव की एडवाइस से अर्जुन इस श्राप को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, वेर इस श्राप की लिमिट जो है 1 साल के लिए हो जाती है, एंड अर्जुन एक्चुअली स्पेंड्स द year of incognito exile Agyatwas as Brihannala, the dance teacher. So the point is that our life, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे वी फील दैट सब खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा. बट I read this in this wonderful book called Open Eyed Meditations by my guru Shubh Prabhu ji. It's written in the book that हमारी लाइफ जो है it is like a balloon. Okay, it is flowing up in the air. Now ऐसे खराब इंसिडेंट्स को we can either use as a pin जो हमारी जिंदगी के बलून को फोड़ दे, या फिर ऐसे एम्बैरेसिंग इंसिडेंट्स को we can use it as a thread जो हमारी जिंदगी के बलून को पकड़ के रखे. So it's on us how we look at the negative incidents in our life and how we use them to shape our own life and to gain better control of it. Okay, amazing, sir. So, on an ending note, this has been a very amazing and a very insightful Thank session. you. Thank you, sir. First of all, thank you, Ujjwal. We, the whole team of Vadodara Vikasa, Mm. express our heartfelt gratitude for you to be in this session. Your Mm. presence and your engagement has truly helped us to make it a success. Thank you, sir.